خدا کے لیے آپ یہ ایسا مت کریں. آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی بھی قسم اٹھوا سکتی ہیں. میں قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو غازان کو... انابیہ کی آواز اس کے آنسوؤں میں ڈوب گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر سامنے کھڑی زارا نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی. زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بند کرو یہ جھوٹ موٹ کے آنسو. دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نا کہ بیٹھے بیٹھائے اتنا شاندار انسان پھنسا لیا اپنے جال میں. بند کرو یہ ناٹک اور پکڑو یہ جوڑا اور جاؤ جا کر سچ سور کر باہر آ جاؤ. لے جا کر بٹھا دیتی ہوں میں تمہیں اس کی سیج پر، جہاں بیٹھنے کے لیے تم مری جا رہی ہو. زارا کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے. انابیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. زارا نے تقریباً پھینکنے والے انداز میں اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کی گٹھڑی رکھی تھی. تیار ہو جاؤ جلدی سے، مولوی آ گیا ہے. بابا جان نے تمہارے نکاح کا حکم دے دیا ہے. اس سے پہلے کہ تم ہمارا سر مزید شرم سے جھکاؤ، اپنی بے قابو ہوتی جوانی کو لگام ڈالو. پھنکارتے ہوئے زارا نے ایک دفعہ پھر انابیہ کو کچوکے لگائے تھے. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیے. بہن کے جملے اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے. زارا الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی. انابیہ وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی. بیڈ پر دھری سرخ گٹھڑی پھسل کر نیچے جا گری تھی. وہ روسی لباس تھا، انتہائی مہنگا اور خوبصورت. اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو انابیہ ٹھٹک سی گئی. اوپر ہی زیورات کا ڈبہ رکھا تھا، چھلمل کرتے خوبصورت جڑاؤ زیورات جو خاندانی ہونے کا پتہ دے رہے تھے. دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا تو انابیہ بے ساختہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. بی بی جی، مالک نے حکم دیا ہے کہ آپ کو تیار کر دوں. مولوی صاحب بس آنے ہی والے ہیں. ملازمہ نے جوڑے کی جانب اشارہ کیا تو انابیہ لب بھینچ کر رہ گئی. مگر وہ جانتی تھی حویلی کے اصول سخت ہیں، فیصلے بدلے نہیں جا سکتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بندھن میں بندھنے جا رہی تھی جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا. مگر اس سے بھی زیادہ شرمناک بات تو وہ تھی جو سب لوگ اس کے متعلق سوچ رہے تھے. اس کے گال ایک دفعہ پھر سرخ پڑنے لگے. ملازمہ مہارت رکھتی تھی. اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد انابیہ کو خوبصورت روپ دے دیا. بھاری عروسی جوڑا پہنے ہلکے سے میک اپ میں اس کا عروسی روپ باطل لگ رہا تھا. وہ کسی کو بھی لمحوں میں گھائل کر سکتی تھی. ملازمہ ہی اسے ہاتھ سے تھام کر کمرے سے باہر لے آئی. باہر نکلتے ہی انابیہ کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے. سامنے ہی صوفوں کے اوپر اس کا پورا خاندان بیٹھا تھا. اس کی بہن زارا، ماں سفینہ بیگم اور باپ تیمور صدیقی صاحب، جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے. صرف غران تھا جو کسی پتھر کی بت کی طرح سامنے سے آتی انابیہ کو دیکھ رہا تھا. نکاح پڑھائے مولوی صاحب، اس سے کچھ بعید بھی نہیں. نہ جانے یہاں سب کے سامنے کیا کر بیٹھے. زارا نے نفرت سے کہا تو اہانت کے شدید احساس سے انابیہ کے گال سرخ پڑ گئے. اسے لے جا کر صوفے پر غاران کے برابر بٹھا دیا گیا. ایک نفرت بھری نگاہ اذان پر ڈالی، مگر اس کے لبوں پر زوردار شوق لگا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا. نکاح ہوتے ہی تیمور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، شہر پہنچتے ہوئے بھی کافی وقت لگ جائے گا. ان کی آواز میں غم تھا. انابیہ کا دل لرز اٹھا تو کیا وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں بھی ساتھ جاؤں گی بابا جان، اس نے کہا تو سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. تم اب واپس کس طرح جا سکتی ہو؟ جو تم چاہتی تھی وہ سب تو میں نے کر دیا. یہ سوچے بغیر کہ اس سب کے بعد میں خود کبھی اپنی نظر میں نہیں اٹھ سکوں گا. اب تم یہیں رہو، ہر وہ سب کچھ کرو جو کرنے کے لیے تم تڑپ رہی ہو. تیمور صاحب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، مگر باپ کے منہ سے ایسی بات سن کر انابیہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی. تیمور صدیقی سفینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب چلے گئے تھے. غازان کے بابا سلجوق صدیقی بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلے گئے. شاید وہ انہیں رات کے اس بہر شہر واپس جانے سے روکنا چاہتے تھے. وہ وہیں کھڑی پتھر کا بت بنی تھی. چلو آؤ، لے جاؤں تمہیں غازان کے کمرے میں، سہاگ رات ہے نا تمہاری. چپتے ہوئے لہجے میں زہرا نے ایک دفعہ پھر کہا تو انابیہ سسک اٹھی. خدا کے لیے بس کر دیں آپ ہی، میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اس رات جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور اور عمل دخل نہیں تھا. وہ سب کچھ صرف ایک حادثہ تھا. انابیہ کی بات کا زارا پر کوئی اثر نہیں ہوا. اس نے ملازمہ کو اشارہ کر دیا تھا. ملازمہ آگے بڑھی اور اس نے انابیہ کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ غازان کے کمرے کی جانب کر دیا
जो अब तक अपने बाप के पीछे जा चुका था। खूबसूरती से सजे हुए कमरे में सफेद बेदाग बेडशीट के ऊपर बैठते हुए अनाबिया फूट फूट कर रोने लगी थी। न जाने कितनी देर तक वो रोती रही। आज उसने अपने सारे रिश्ते खो दिए, और खोए भी किसके लिए थे। आजान का तस्वुर जहन में आते ही उसके हलक तक में कड़वाहट खुल गई। उसके लबों पर मसनूई मुस्कुराहट उसे याद आई तो वो जैसे बर्फ का मुजस्मा बन गई। तो आखिर तुम कामयाब हो ही गए गाजान। एक तंजिया सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। गहरी सांस लेते उसने बेड की पुश से टेक लगा ली। ज़ारा के नफरत में डूबे अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, मगर कुछ और भी था जो यादाश्त के पर्दे पर मुसलसल चल रहा था। कितनी खुश थी वो यहाँ आने से पहले। पहाड़ों में बनी इस खूबसूरत हवेली को देखने के लिए वो कितनी बेचैन थी। मेरा कमरा है ये, निकलो यहाँ से। एक तरफ आवाज उसके कान में गूंजी तो वो हड़बड़ा गई। वो नींद में जा चुकी थी और नींद में ही माजी उसके सामने पर्थ दर पर्थ खुल रहा था। ये ज़ारा की आवाज़ थी। 13 साला ज़ारा जो अपने से 3 बरस छोटी 10 साला अनाबिया को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर घसीट रही थी। लेकिन ये मेरा कमरा है, मैं शुरू से यहाँ रहती हूँ, अनाबिया ने सिसकते हुए कहा, मगर ज़ारा ताकतवर थी। उसने उसे बाहर धकेल कर खुद कमरा बंद कर लिया था। बाहर लाउंज में बड़े सोफे पर बैठकर कितनी देर तक वो रोती रही। उसे पता था कि चुप करवाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। माँ के मरने के बाद तो वो यूं भी लावारिसों वाली जिंदगी गुजार रही थी। एक बूढ़ी आया ही थी घर में जो उसे खाना वगैरह खिला दिया करती, मगर तैमूर साहब बीवी की मौत के बाद बिल्कुल ही टूट फूट गए थे। उन्होंने भी बेटी की तरफ देखना तक छोड़ दिया था। चूंकि तो वो उस दिन जब किचन में अपने लिए खाना गर्म करते हुए अनाबिया के हाथ पर सालन गिर गया, उसकी चीखें सुनकर तैमूर साहब जो कमरा अंधेरा किए बैठे थे, लपक कर दौड़ते हुए किचन में आए जहां वो फूट फूट कर रो रही थी। आपको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए तैमूर साहब, बच्ची अभी छोटी है, अपना ख्याल नहीं रख सकती। अब दफ्तर चले जाते हो, कहीं पे किसी दिन अपना कोई नुकसान न कर बैठे। ये आया ने उन्हें समझाया और वो अपना सामान बांधने बैठी थी। उनका बेटा उन्हें लेने आया था, हर रोज के साथ गांव जा रही थी। उस आया के अलावा तैमूर साहब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अनाबिया की उम्र उन दिनों सिर्फ 8 साल थी। बढ़ती उम्र की बच्ची को वो किसी और के हवाले नहीं कर सकते थे। तंग आकर उन्होंने महबूब बीवी को भुलाकर दूसरी शादी का फैसला कर लिया। उनकी दूर भर की कजन सफीना ब्याह कर उनके घर आई तो उसके साथ ज़ारा भी थी। उसके पहले शौहर से उसकी औलाद खामोश और संजीदा सी बच्ची। उसने आते ही अनाबिया को बड़े गौर से देखा। अच्छा है अनाबिया की उसके साथ दोस्ती भी हो जाएगी, तैमूर साहब ने सोचा, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तैमूर साहब तो शादी के चंद ही महीनों के बाद खुद दुबई चले गए। पीछे अनाबिया मुकम्मल तौर पर सफीना बेगम और ज़ारा के रहमो करम पर आ गई। उन दोनों ने उसे मुकम्मल तौर पर सिंड्रेला बना दिया था। घर के छोटे बड़े कई काम वो करती और ज़ारा ने उसे उसके कमरे से महरूम कर दिया। घर में मौजूद इकलौता कंप्यूटर चलाने की इजाज़त सिर्फ ज़ारा को थी। सिर्फ वही अगर चाहती तो अनाबिया कभी कभार उसे इस्तेमाल कर सकती थी। बाप का फोन आता तो चाहने के बावजूद अनाबिया उससे कोई बात न कर सकती। वो सिर्फ छुट्टियों के इंतजार में ही रहती कि कब तैमूर साहब वापस आएंगे और वो उनसे अपने दिल की बात कह सकेगी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही तैमूर साहब वापस आते, सफीना बेगम और ज़ारा का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता। खाने की मेज पर वो बार बार खाने की चीजें अनाबिया के सामने रखती और जैसे ही तैमूर साहब इधर उधर होते, आंखें निकालते हुए वो सिर्फ एक ही धमकी देती, अगर अपने बाप को कुछ भी बताया तो अंधेरे बाथरूम में बंद कर दूंगी। अनाबिया लरस कर रह जाती। अंधेरे बाथरूम में बंद होने का तजुर्बा बड़ा खौफनाक था। एक दफा वो उसे बंद कर भी चुकी थी जब ज़ारा ने रोशनदान से कॉकरोच से भरा शॉपर अंदर को लुढ़का कर उसका मुंह खोल दिया था। अनाबिया की चीखें पूरे घर में गूंजती थी और बेहोश होने के बाद ही उसे बाहर निकाला गया। वो झुरझुरी लेकर रह जाती। नतीजतन उसने कभी तैमूर साहब को यह न बताया कि घर में उसके साथ कैसा सुलूक होता है। और अब जब दोनों ही जवानी की हुदूद में कदम रख चुकी थी, अनाबिया 18 साल की जबकि ज़ारा 21 साल की हो चुकी थी, तो तैमूर साहब के बड़े भाई जो पहाड़ी इलाकों में बनी अपनी खानदानी हवेली में रहते थे, अचानक ही मिठाइयों के टोकरों समेत उनके घर चले आए। हमारी बेटी तो हमारे हवाले कर दो तैमूर, बहुत अरसा रख लिया तुमने उसे। सादान की बैरून मुल्क बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है। खैर हमें तो उस नौकरी की जरूरत ना थी,
خاندان کی جائیداد ہی اتنی ہے کہ یہ سالوں تک بیٹھ کر بھی کھائے تو کم نہیں پڑے گی، لیکن نوکری بڑی اعلیٰ پوسٹ پر ہے، اب تم جلد از جلد انابیہ کا رشتہ ہمیں دے دو۔ سلجوق صاحب نے محبت سے کہا تو سفینہ بیگم نے بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلا۔ انابیہ کیوں؟ زارا کیوں نہیں؟ وہ بڑی ہے اور اس کا زیادہ حق ہے۔ انابیہ تو ویسے بھی ابھی چھوٹی ہے، سارا دن بندروں کی طرح اچھل کود کرتی رہتی ہے، عقل تو اس میں نام کی نہیں۔ زارا سگڑ ہے، اپنی ڈگری مکمل کر چکی ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم نے اس کا رشتہ کرنا ہی ہے، تو پھر سادان تو خاندان کا لڑکا ہے اور اتنی دولت جائیداد والے لوگ ہیں آپ۔ فوراً زارا کے لیے انہیں ہاں کر دی۔ سفینہ بیگم نے تو رات ہوتے ہی تیمور صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ سلجوق صاحب نے بڑی محبت سے انابیہ کا رشتہ مانگا تھا، بچپن سے ہی وہ انابیہ کو اپنی بہو کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن اب بیوی کی بات سن کر وہ خود سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اگر زبردستی بیٹی کا رشتہ بھائی کے گھر کر دے تو سب یہی سمجھتے کہ انہوں نے زارا کو کبھی اپنی سگی بیٹی کا درجہ نہیں دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جب انہوں نے فون پر اپنے بھائی کو اطلاع دی کہ وہ انابیہ کی بجائے زارا کا رشتہ سادان سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے تو وہ چپ ہو گئے، مگر پھر خوش دلی سے ہنس دیے۔ کیوں نہیں، زارا بھی ہماری بیٹی ہے، شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ اور تیمور صدیقی کے سر سے گویا کوئی بھیانک بوجھ اتر گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ زارا تو گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اتنا امیر کبیر رشتہ بیٹھے بٹھائے اسے مل گیا تھا۔ اسے ویسے بھی مڈل کلاس لوگوں کی طرح جینا ناپسند تھا۔ سنو، یہ سارے کپڑے اب تم رکھ لو، ویسے بھی سادان نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی صرف برانڈز پہنے، یہ لوکل کپڑے اب مجھے سوٹ نہیں کرتے، تمہاری پرسنالٹی بھی خوب جچیں گے۔ زارا نے کپڑوں کا ڈھیر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا اور موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انابیہ نے حیرت سے کپڑوں کو دیکھا اور پھر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو، اس میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن زارا اس کا یوں مذاق اڑایا کرتی جیسے وہ کسی قابل نہ ہو۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سفید دودھیا رنگت اور کمر تک آتے سیاہ بال۔ 18 سال کی عمر میں اس کا قد 5 فٹ 2 انچ سے زیادہ ہی تھا۔ اسے تو خود میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ کندھے اچکا کر اس نے سارے کپڑے الماری میں رکھ لیے۔ اسے پتا تھا کہ ماں نے اسے خود سے کبھی نئے کپڑے بنوا کر نہیں دیے، تو اب بھی نہیں دے گی۔ ساری زندگی وہ زارا کی اترن ہی پہنتی آئی تھی۔ زارا اور سادان کی شادی کا دن قریب آیا۔ انابیہ بے حد خوش تھی۔ سارے ماحول میں وہ چہکتی پھر رہی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے وہ دودھ کا گلاس لے کر آگے بڑھی تو سفینہ بیگم نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ ادھر آؤ میری طرف، یہ اتنی تیز لپسٹک لگا کر اپنے بہنوئی کے سامنے کیوں جا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تو ویسے بھی اتنا بھڑکیلا سا لباس دلوا دیا تمہارے باپ نے، دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لو اور صاف کرو اسے۔ انہوں نے ٹیشو تقریباً اس کے منہ پر تھوپا تو انابیہ کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ شرمندگی سی محسوس ہوئی اور سامنے سادان کے برابر میں بیٹھی دلہن بنی زارا نے اپنی گردن فخر سے اکڑا لی تھی۔ جس شاندار طریقے سے اس کی بارات آئی تھی، اسے صاف دکھ رہا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور وہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ سادان نے بری میں لاکھوں کے زیورات بنا ڈالے۔ بارات رخصت ہونے لگی تو سلجوق صدیقی نے مڑ کر چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ اب تو تم بھی اپنی قسم توڑ دو، دبئی سے واپس آئے ہوئے تمہیں 2 سال ہو گئے ہیں، تمہاری بیٹی بیاہ کر لے جا رہے ہیں، اب تو تم حویلی آؤ گے نا؟ انہوں نے پوچھا تو تیمور صاحب مسکرا دیے۔ فکر ہی مت کرو، ہم لوگ جلدی چکر لگائیں گے۔ انابیہ تو مارے خوشی کی اچھل پڑی۔ حویلی جانے کا اس کا خواب پرانا تھا، وہاں اس کا سارا خاندان رہتا تھا اور وہ تصور میں سوچتی تھی کہ پہاڑوں میں گھری وہ شاندار حویلی کیسی ہوگی۔ زارا نے تو جانے کے بعد پلٹ کر فون کرنا تک گوارا نہ کیا، وہ تو اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں ایسی مصروف ہوئی کہ سفینہ بیگم تک کو بھول گئی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے شکوہ کرنے لگی۔ انابیہ بھی اپنی پڑھائی میں بزی ہو گئی۔ کالج میں امتحانات چل رہے تھے، امتحانات ختم ہوئے اور اس کے بعد پریکٹیکلز 6 مہینے کب گزر گئے انہیں پتہ تک نہ چلا۔ کالج سے بیگ تھامے وہ گھر آئی تو سامنے بیٹھے تیمور صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چھٹیاں ہو گئی میری بیٹی کی؟ انہوں نے پوچھا تو انابیہ مسکرا دی۔ جی ہاں بابا جان، لمبی چھٹیاں ملی ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس بار کہیں گھمانے لے کر جائیں گے۔ کون سے پارک لے کر جائیں گے؟ انابیہ نے سادگی سے کہا تو تیمور صاحب مسکرا دیے۔ پارک نہیں، اس دفعہ تمہیں پہاڑوں پر لے کر جاؤں گا، تیاری کر لو، ہم لوگ حویلی جائیں گے،
इसी बहाने ज़ारा से भी मुलाकात हो जाएगी और तुम वहां की खूबसूरती भी देख लोगी। उनके कहने पर अनाबिया खुशी से तो उछली पड़ी और बाप के गले में बाहें डालकर लटक गई। शुक्रिया बाबा जान, आप कितने अच्छे हैं, खुशी से उनके साथ झूलते हुए कह रही थी जब सफीना बेगम ने पास बैठते हुए उसे टोका। इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक उठने बैठने की तमीज नहीं आई, कमरे में जाओ। उनके टोकने पर वो शर्मिंदा हो गई। उठ खड़ी हुई, मगर तैमूर साहब का वादा सच्चा था। चंद ही दिनों बाद उन्होंने उनकी हवेली रवानगी के तमाम बंदोबस्त कर लिए थे और आखिरकार वो मनहूस दिन भी आन पहुंचा जब अनाबिया ने अपनी जिंदगी की सबसे फाश गलती की थी। जिस दिन हवेली से आई हुई गाड़ी से नीचे उतरते उसने हवेली पर अपनी पहली निगाह डाली। हैरत के मारे उसकी आंखें फैल सी गई। इतनी बड़ी और शानदार हवेली, दूर से झांकते पहाड़ और पहाड़ी इलाके का हुस्न उसे मसहूर कर रहा था। चलो भाई अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आई सिलजोक सिद्दीकी ने उन्हें अंदर की जानिब मोहब्बत से बुलाया था, तो तैमूर साहब सफीना बेगम का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब चल दिए। मुलाजिमों की एक पूरी फौज थी जो अंदर उनके साथ जा रही थी। अनाबिया ने भी उनके पीछे अंदर कदम बढ़ा दिए और तभी उसे याद आया, ओह मेरा हैंड बैग, वो तो गाड़ी में ही रह गया। वो यकदम पलटी और तभी उसका दिमाग घूम गया। सामने गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। वो तो ये भी भूल गई कि इस गाड़ी में वो लोग यहाँ तक आए थे। परेशानी से दाएं बाएं नजर दौड़ाते हुए वो हर गाड़ी को देख रही थी। ड्राइवर ही नजर आ जाए, उसी से पता चल जाएगा कि उसने परेशानी से सोचा। हैंडबैग में उसका मोबाइल, मेकअप और सारी जरूरी चीजें थी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? भारी आवाज पर वो अचानक पलटी। सामने ही सादान से मिलते जुलते चेहरे वाला एक शख्स खड़ा था। स्याह आंखें, माथे पर गिरते स्याह बाल और स्याह रंग की जैकेट पहने वो पहाड़ी हुस्न का मुंह बोलता सबूत था। अनाबिया ने एक लम्हे में ही उसे पहचान लिया। वो गाजान सिद्दीकी था, उसके चचा का छोटा बेटा। बचपन के बाद उसने आज पहली दफा उसे देखा था। गाजान लाला, वो दरअसल मेरा बैग गाड़ी के अंदर रह गया है, इसमें मेरी कुछ जरूरी चीजें हैं, उसने शर्मिंदगी से बताया तो गाजान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो पलटा और सामने पार्क हुई गाड़ियों में से एक गाड़ी की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो लौटा तो उसके हाथ में अनाबिया का बैग था। बैग को देखते ही अनाबिया ने शुक्र भरा सांस लिया। शुक्रिया, इसमें मेरा टूथब्रश भी था, मुझे ब्रश किए बगैर नींद नहीं आती, उसने छींपते हुए कहा। अब की बार गजान की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। अब अंदर चलना है या यहीं खड़े खड़े बर्फ का मुजस्मा बनना है? थोड़ी ही देर के बाद यहाँ शदीद सर्दी हो जाएगी। ये शहर नहीं, पहाड़ी इलाका है, गाजान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो अनाबिया को अचानक बढ़ती हुई ठंड का एहसास हुआ। शॉल अपनी गिर्द लपेटते हुए उसने गाजान की हमराही में अंदर कदम बढ़ा दिए। हवेली जितनी बाहर से शानदार थी, अंदर से भी उसकी वही शान और शौकत थी। ज़ारा के तो अंदाज ही बदल चुके थे। उसे देखते ही अनाबिया हैरान रह गई। शाहाना अंदाज में वो सोफे पर बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी। अनाबिया को देखते ही उसने बस मसनूई सा मुस्कुराकर हेलो कहने पर इत्तफाक किया। अनाबिया को शर्मिंदगी से महसूस हुई, लेकिन हवेली का हुस्न देखते हुए सब कुछ वो भूल भाल गई थी। जितने दिन भी यहाँ रहूंगी, इस सारे इलाके को जी भर कर देख लूंगी और खूब सारी पिक्चर्स बनाऊंगी, उसने दिल ही दिल में अहद कर लिया था। जब ही मुलाजिम ने आकर खाना लगने की इतला दी, खाने की मेज पर क्या था जो मौजूद ना था। सारे लोग कुर्सियों पर बैठ गए थे। वो हाथ धोकर जब टेबल पर आई तो वाहिद एक की कुर्सी बची थी जो गाजान के बराबर में थी। एक पल के लिए तो वो झिझकी, लेकिन सभी खाने में मसरूफ थे। बैठ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, सिलजोग साहब ने मोहब्बत से कहा तो वो कुर्सी के पास जाकर खड़ी हो गई। कुर्सी भारी थी, 2-3 दफा हिलाने पर भी उससे ना हिली तो गाजान ने पलटकर उसके लिए कुर्सी घसीट दी। किसी ने सर उठाकर ना देखा था सिवाय ज़ारा के, जिसने चिपटी हुई निगाह गाजान और उसके बराबर में बैठती अनाबिया पर डाली थी। सादान इतनी जल्दी वापस चला गया और अकेला ही चला गया है, ज़ारा को साथ नहीं लेकर गया। बगैर फैमिली के वहां कैसे रहेगा? उसकी तो जॉब भी अच्छी है, वो तो फैमिली को वहां बुला सकता है। तैमूर साहब ने प्लेट में चावल डालते हुए सुलजोग साहब से पूछा तो उन्होंने गहरी सांस ली। अमेरिका में आजकल हालात अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो फिलहाल ज़ारा को वहां नहीं ले जाना चाहता। वैसे ही पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ख्वाह वहां जाकर किसी परेशानी में न मुब्तला हो जाए। उसने कहा है कि
वो कुछ अरसे बाद ज़ारा को वहां बुलवा लेगा। उन्होंने बड़ा वजाहती जवाब दिया था, मगर ज़ारा ने बेचैनी से पहलू बदला। अनाबिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसका सफेद पड़ता रंग उसे दूर से ही नजर आ गया था। अनाबिया को हैरत सी हुई। अपने अमेरिका जाने की बात पर तो उसका रंग खुशी से सुर्ख पड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो यूं हो गई थी जैसे किसी मुर्दे का चेहरा हो। एक्सक्यूज मी, अचानक ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सभी ने चौंक कर उसे देखा। ज़ारा ने खाना क्यों नहीं खाया? सफीना बेगम ने परेशानी से कहा तो सिलजोक साहब ने तसल्ली दी। सादान के जिक्र पर इसी तरह से अपसेट हो जाती है। नई नवेली दुल्हन है ना, अभी उसे अपने शौहर की याद आती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जल्दी उनके पास चली जाएगी। और दरअसल 2 रोज हो गए हैं, सादान का नंबर भी नहीं लग रहा। शायद वो वहां मसरूफ है, इसलिए भी उसे याद कर रही होगी। सिलजोक साहब की बात पर सभी सर हिलाते हुए खाना खाने में मसरूफ हो गए थे। सिर्फ अनाबिया ही थी जो उलझन भरी निगाहों से वहां देख रही थी जहां ज़ारा चली गई थी। वो बचपन से लेकर आज तक ज़ारा को अच्छी तरह जानती थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो किसी चीज को इतनी जल्दी खुद पर सवार नहीं करती, और वैसे भी वो खुद में मगन रहने वाली लड़की थी। इतनी दौलत और शान शौकत जिसकी हमेशा उसने ख्वाहिश की थी, उसे पाने के बावजूद वो अमेरिका क्यों जाना चाहेगी? उसे अपने सवाल का कोई जवाब न मिला तो कंधे उचकाकर वो खामोशी से खाना खाने लगी। ये कबाब लो, बहुत अच्छे बने हैं, दुम्बे के गोश्त के हैं। गाज़ान ने कबाब उसकी प्लेट में रखते हुए कहा तो उसने बेइख्तियार नजर उठाकर उसे देखा। इंतहाई निफासत से खाना खाते हुए वो मगन नजर आ रहा था। उम्र में वो उससे कम से कम 10 साल बड़ा था। सादान और वो दोनों जुड़वा थे। यही वजह थी कि वो उसके मुकाबले में काफी मैच्योर नजर आ रहा था। अपने कमरे में आते ही उसे थकावट का शदीद एहसास हुआ। खिड़की से बाहर फैली रात में भी सर उठाए हुए देव हेकल पहाड़ साफ नजर आ रहे थे। चांद की रोशनी में दरख्तों के साए माहौल को मजीद पुरअसरार बनाने लगे। तो वो पर्दे बराबर करती हुई बेड पर आकर लेट गई। हवेली की हर चीज में से अमारत टपक रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि अगली रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। अगला दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। वो लोग आसपास के इलाके घूमते रहे। अनाबिया जगह की खूबसूरती देख देख कर मशहूर हुई जा रही थी। गजान उन सबको लेकर एक वाटरफॉल दिखाने ले गया था और वहां से वापसी पर ज़ारा को कुछ चीजें लेनी थी। उसने अजान को जबरदस्ती नजदीकी बाजार की जानिब गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। रात बहुत हो रही है भाभी, अम्मा ने घर में बारबेक्यू का प्रोग्राम भी सेट कर रखा है। अगर हम बाजार जाएंगे तो हमें काफी लेट हो जाएगा। गाज़ान ने संजीदा लहजे में ज़ारा से कहा, लेकिन वो अचानक चिढ़ गई। जब मैंने तुम्हें कहा है कि बाजार चलो, मैंने कुछ चीजें लेनी है, तो सुन क्यों नहीं रहे? उसके लहजे की टोन ऐसी थी कि सभी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। गाज़ान ने खामोशी से गाड़ी नजदीकी बाजार की जानिब मोड़ ली थी। तुम लोग यहीं पर वेट करो, मुझे जो लेना है मैं लेकर आ जाती हूँ। गाड़ी रुकते ही ज़ारा उजलत से बाहर निकली थी। अनाबिया ने चौंक कर उसे देखा और उसका ये मिजाज तो ना था। वो तो शॉपिंग भी पूरा दिन लगाकर किया करती थी। कंधे उचकाकर वो सब आपस में बातों में मसरूफ हो गए। गाज़ान गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास का जायजा ले रहा था और वो ज़ारा के अंदर अकेले जाने से बेचैन था। मैं यहाँ गाड़ी के पास खड़ा होता हूँ, तैमूर साहब आप अंदर चले जाएं। भाभी अकेली बाजार में चली गई हैं, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। गाज़ान ने कहा तो तैमूर सिद्दीकी साहब अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। अनाबिया भी उनके साथ ही बाहर आ गई थी। धीरे धीरे चलते वो दोनों बाजार में लगी दुकानें देखते हुए आगे बढ़ने लगे। ज़ारा जिस दुकान को बताकर गई थी वहां तक पहुंचकर अनाबिया चौंकी। वहां ज़ारा तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तैमूर साहब भी परेशान निगाहों से दाएं बाएं देख रहे थे। यहाँ पहाड़ी इलाके में मोबाइल के सिग्नल्स जरा मुश्किल से ही आते थे। हवेली में तो एक दूसरे से राब्ता करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। अरे हैरत है, बाजार में सिग्नल्स आ रहे हैं, उन्होंने कहा। और तभी अनाबिया की निगाह ज़ारा पर पड़ी और वो दुकानों का दूसरी तरफ ज़ारा कम रश वाले इलाके में खड़ी थी। मोबाइल उसने कान से लगा रखा था और वो किसी से बात कर रही थी। उसके बात करने का अंदाज से वाज़ेह झंझलाहट थी और जैसे वो किसी बात पर मुसलसल जोर दे रही हो। अनाबिया ने हैरत से उसे देखा। बाबा वो रही आप ही, अनाबिया ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज पर ज़ारा ने भी चौंक कर उसकी सिमत देखा था। एक लम्हे के लिए तो उसका रंग सफेद पड़ा और फिर उसने शोला बार निगाहों से अनाबिया की जानिब देखा। आ जाओ भाई ज़ारा, देर हो रही है। तैमूर सिद्दीकी की आवाज पर वो मोबाइल पर्स में रखकर उन तक चली आई थी।
गाड़ी में बैठने तक वो अपना एतमाद बहाल कर चुकी थी। घर वापस आते ही वो सब हवेली के पिछले लॉन में चले आए थे, जहां भाईजान ने शानदार बारबेक्यू का इंतजाम कर रखा था। पहाड़ी इलाके की रात वाकई हसीन थी और हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें करते और खाना खाते उन्हें काफी देर गुजर गई। अनाबिया तो जल्द सोने की आदी थी। उसे ठंड भी लग रही थी और कहने लगी कि बाबा मैं कमरे में जा रही हूँ। उसने बाप को इतला दी तो उन्होंने सर हिला दिया। आहिस्तगी से सबके बीच में से उठकर चलते हुए कमरों की तरफ चली आई। यहाँ कितार में कमरे बने हुए थे और सभी के दरवाजे एक जैसे थे। न जाने उसकी किस्मत बुरी थी या क्या। कितार के पहले सिरे पर कदम रखते ही वो भूल गई कि उसका कमरा कौन सा वाला है। यहाँ रोशनी जरा मध्यम ही थी। अनाबिया को पता भी न था कि कौन सा बोर्ड लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। अंदाजे से ही वो चलती हुई आगे आई और दरमियानी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही उसे शुक्र का सांस आया, क्योंकि सामने वही बेड था जिस पर वो कल रात को सोई थी। कमरे की तरतीब भी वैसी ही थी। नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थी और उसने लाइट ऑन करने की भी जहमत न की। दरवाजा बंद किया तो कमरा खूब अंधेरे में डूब गया था। वो जल्दी से जूते उतार कर कंबल में जाकर दुबक गई और सर्दी से उसकी हालत गैर हो रही थी। कंबल की गर्माइश मिली तो वो कुछ ही देर में पुरसकून होते हुए गहरी नींद में उतर गई। न जाने कितनी देर गुजर गई थी जब अचानक उसे अपने बाजू पर किसी अजीब से लम्स का एहसास हुआ। वो गहरी नींद में थी और नींद के टूटने पर जरा सा कसमस आई और बाजू हटाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन इससे पहले कि दोबारा नींद में जा पाती, अचानक उसे अपने सीने पर बोझ सा महसूस हुआ। यूं लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। अनाबिया ने कसमसाकर हिलने की कोशिश की, लेकिन यूं लग रहा था जैसे उसका पूरा वजूद किसी ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा हो। एक झटके से उसकी आंख खुली। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था और अनाबिया ने जल्दी से ऊपर बड़ा बोझ हटाना चाहा और उसके औसान खता हो गए। वो किसी का बाजू था जो उसके सीने पर धरा था और उसके ऐन करीब से उठती गहरी सांसों की आवाज उसे बता रही थी कि कोई उसके साथ सो रहा है। अनाबिया के लबों से खोटी खोटी सी चीख निकली। उसने डरते डरते पलट कर निगाह अपने दाएं तरफ डाली और उसे एक जोरदार झटका लगा। वो कोई और नहीं, गाजान सिद्दीकी था जो उस वक्त गहरी नींद में था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और शायद उसने नींद में ही अपना हाथ अनाबिया के ऊपर धर कर उसे अपने करीब कर लिया था। अनाबिया का वजूद जैसे किसी जलजिले की जद में आ गया और उसने एक जोरदार चीख मारी और झटका देकर गाजान सिद्दीकी को पीछे हटाया और तेजी से बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। झटके के सबब गाजान सिद्दीकी की भी आंखें खुल गई थी और अब वो भी हैरत से दाएं बाएं देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने हैरत से अनाबिया से पूछा, जिसके बाल बिखर कर उसके शानों पर गिर रहे थे। दुपट्टा नदार था और आंखें खौफ से फैली हुई थी। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, आप यहाँ क्यों आए? उसने घबराए हुए लहजे में कहा और अगले ही पल गाज़ा ने अपने माथे पर हाथ मारा। ओह, मेरे कमरे की और जो कमरा तुम्हें दिया गया उसकी तरतीब बिल्कुल एक जैसी है। शायद तुम इसीलिए मिसअंडरस्टैंड कर गई, लेकिन ये मेरा कमरा है और मैंने भी देखा नहीं कि तुम यहाँ सो रही थी। गाज़ान सिद्दीकी ने बिस्तर से उठते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी चीज दुरुस्त कर पाते, दरवाजा जोर जोर से बजाया जाने लगा। बाहर सारे जमा हो चुके थे और अनाबिया की चीख ने उन सबको खबरदार कर दिया। कौन है अंदर और क्या हुआ है अनाबिया को? दरवाजा खोलो। तैमूर सिद्दीकी साहब बाहर खड़े चिल्ला रहे थे। अनाबिया का रंग फक हो गया था और गाज़ान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन अनाबिया तो जमीन में गड़ी जा रही थी। वो उसे रोकना चाहती थी पर रोक न सकी। गाज़ान ने दरवाजा खोला। बाहर खड़े तमाम नफूस एक साथ ही अंदर आए थे और अंदर का मंजर देखकर जैसे उन्हें सांप सूंघ गया। अनाबिया बिखरे बाल और बिखरे लिबास के साथ बिस्तर के दाएं जानिब खड़ी थी और उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था। क्या तमाशा हो रहा है ये सब? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक जा सकते हो। तैमूर साहब ने यकदम आगे बढ़कर गाज़ान का गिरेबान पकड़ लिया। सभी मामले की संगीनी को भांप चुके थे। तभी पीछे खड़ी ज़ारा अचानक आगे बढ़ी। गाज़ान का इसमें क्या कसूर है बाबा जान? ये इसी का कमरा है। यकीनन अनाबिया खुद यहाँ पर आई है। आप देख नहीं रहे कितनी तसल्ली से खड़ी है। अगर इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की होती, गाज़ान ने तो ये इतने आराम से खड़ी होती, चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया होता। इसे मैं कल से देख रही हूँ कि ये गाज़ान के आगे पीछे फिर रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस कदर गिरी हुई सोच की मालिक निकलेगी।
حویلی کے ٹھاٹ باٹ اور دولت اور جائیداد کو دیکھ کر اس نے اپنی عزت تک غازان کے قدموں میں رکھ دی۔ زہرا کے ذہن میں بجھے الفاظ ادا ہوئے تو سبھی کی نظروں کا زاویہ انابیہ کی جانب مڑ گیا، وہ جو اب تک خود کو سنبھال ہی نہ پائی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ نہیں بابا جان، ایسا نہیں ہے، دراصل اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ کہنا چاہا، مگر زہرا نے اچانک آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اگر تمہیں غازان سے شادی ہی کرنی تھی تو پہلے بتا دیتی، ہم عزت دار طریقے سے تمہارا نکاح کر دیتے، لیکن تم سے تو جوانی سنبھالی ہی نہیں جا رہی۔ توبہ توبہ، کون کرتا ہے ایسے؟ انابیہ بوڑھے باپ کا ہی کچھ خیال کر لیتی۔ زہرا مسلسل جلتی پر تیل ڈال رہی تھی۔ انابیہ کبھی باپ کو دیکھتی اور کبھی غازان کو۔ تیمور صاحب کے اچانک ہی کندھے جھک گئے تھے اور ان کے ہاتھوں سے غازان کا کالر چھوٹ گیا۔ بابا ایسا نہیں ہے، انابیہ نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار تیمور صاحب نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ جھکے کندھوں کے ساتھ وہ اچانک پلٹے اور کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ چلو یہاں سے، زہرا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ ہوئی برابر والے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ابھی خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، میں تو انہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، میں غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مسلسل کہہ رہی تھی، مگر زہرا اس کی بات سننے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ کمرے کے اندر دھکا دیتے اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے میں کھڑے غازان نے پریشانی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ معاملہ اچانک ہی خطرناک رخ اختیار کر گیا تھا۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر چلا آیا جہاں سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ غازان کی آہٹ سنتے ہی سب نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور تیمور صاحب کی نظروں میں واضح نفرت تھی۔ غازان کو سمجھنا ہے کہ وہ ان سب کی غلط فہمی کیسے دور کرے۔ مجھے معاف کر دو تیمور، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ایسی حرکت کرے گا۔ اگر تمہاری بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ذمہ دار غازان بھی ہے، سزا تو اسے بھی ملنی چاہیے۔ یہ سلجوق صدیقی صاحب کی آواز تھی۔ غازان نے بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ بہتر یہی ہے کہ میں انابیہ کو لے کر یہاں سے ابھی چلا جاؤں۔ تیمور صاحب اتنے عرصے میں پہلی دفعہ بولے تھے، لیکن تبھی سلجوق صاحب بول اٹھے، نہیں، اب اس بات کے اختتام پر پہنچنا ضروری ہے۔ میں پہلے بھی انابیہ کے رشتے کا تم سے طلبگار تھا اور اب بھی یہی کہتا ہوں، غازان کے لیے انابیہ کا رشتہ مجھے دے دو، ہم کل صبح ہی ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اگر بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ سلجوق صاحب کی بات پر جیسے سب کچھ سانپ سونگ گیا۔ سب سے زیادہ سفید رنگت تو زہرا کی پڑ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں تایا جان؟ نکاح غازان اور انابیہ کا؟ نہیں، انابیہ اس لائق نہیں۔ دیکھا نہیں ابھی آپ نے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ بے ترتیب جملے زہرا کے لبوں سے نکلتے تیمور صاحب نے چونک کر اپنی بڑی بیٹی کی جانب دیکھا تھا۔ بابا جان صحیح کہہ رہے ہیں چچا، اب میرا اور انابیہ کا نکاح کروا دے، سنجیدہ آواز میں غازان نے کہا تو تیمور صاحب نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے سر جھکا لیا۔ یہ ان کے ہاں کا اشارہ تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں، لیکن زہرا بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ پھر اس نے بے چینی سے کہا اور اب کی بار تیمور صاحب نے حیرت سے اس سے پوچھا، تمہیں نکاح میں کیا اعتراض ہے؟ بدنامی تو انابیہ کی ہو ہی چکی ہے، نکاح ہو جائے گا تو کم از کم وہ ساری زندگی کی ذلت سے تو محفوظ رہ جائے گی۔ تیمور صاحب کی بات پر زہرا اچانک خاموش سی رہ گئی، لیکن اس کی بے چینی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سلجوق صدیقی صاحب نے غازان اور انابیہ کے نکاح کا حکم دے دیا۔ اگلی صبح نمودار ہوتے ہی ان دونوں کی نکاح کی تیاری کی جانے لگی۔ پورے علاقے کے مہمانوں کو بلایا گیا تھا اور خاندان بھر کے لوگ شرکت کر رہے تھے، مگر سلجوق صاحب نے کسی کو یہ نہ بتایا کہ اتنا ایمرجنسی نکاح کس وجہ سے رکھا گیا۔ وہ بہت خوش تھے، انہیں تو انابیہ شروع سے ہی پسند تھی۔ صرف انابیہ ہی تھی جو اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ جب شام ڈھلے زہرا نے اس کے نکاح کا جوڑا اس کے سامنے پھینکا اور وہ کس طرح پھوٹ پھوٹ کر اس کی منت سماجت کرنے لگی تھی، لیکن زہرا کو تو انابیہ کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ نیند میں گم انابیہ کو اچانک اپنی دائیں گال پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تو اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھولی۔ سامنے غازان کھڑا تھا، سفید رنگ کی شیروانی اس نے اتار دی تھی۔ شاید وہ کمرے میں آنے کے بعد لباس بدل چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر تھا۔ انابیہ کو چند لمحے لگے خود کو سنبھالنے میں، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور ہٹا دیا۔ دور ہٹے مجھ سے، میں سب سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ پہلے مجھے بدنام کیا اور پھر اچھا بنتے ہوئے مجھے نکاح کرنے کی شرط رکھ دی۔ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں آپ۔
मैं आपको अपना भाई समझती थी। अनाबिया बेड से नीचे उतरकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खजान ने सीने पर दोनों हाथ बांधते हुए भरपूर निगाहों से उसका जायजा लिया। सुर्ख रंग के और उसी लिबास में उसका हुस्न कयामत ढा रहा था, मगर जो कुछ वो कह रही थी उसे सुनने की ताब खजान में ना थी। देखो अनाबिया, इस सब सिलसिले में मैं भी उतना ही बेकसूर हूँ जितनी कि तुम। उस रात ना तुमने गलती की थी और ना ही मैंने। कमरे में मैं भी बगैर कुछ देखे दाखिल हो गया था और आते ही सो गया, और फिर जब सबने निकाह की शर्त रखी तो मुझे अचानक ही यूं लगा जैसे मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई हो। एयरपोर्ट पर तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे अजीब सी उनसियत हो गई थी। उसने आगे बढ़कर अनाबिया को कंधों से थामना चाहा, लेकिन वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी। हाथ मत लगाइएगा मुझे, नफरत हो रही है मुझे आपके वजूद से। जानबूझकर मुझे इस्तेमाल किया है आपने, मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया, सब मुझे बदकिरदार समझ रहे हैं। वो अचानक ही दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अहानत से गाजान का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। देखो अनाबिया, मैं कह रहा हूं ना कि ये सब मैंने नहीं किया, उसने अनाबिया के बराबर बैठते हुए कहा, लेकिन उसकी कुर्बत जैसे अनाबिया के अंदर आग लगा रही थी। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि निकल जाए मेरे कमरे से, घिना रही है मुझे आपके वजूद से। अपने रुतबे और अपनी दौलत का घमंड है ना आपको। मत भूलें कि ये खानदान मेरा भी कुछ लगता है, और अगर मेरे खानदान वालों के सामने बता दूं कि आपने ये सब जानबूझकर किया है तो क्या हैसियत रह जाएगी। आप लोगों के घर में होती होगी ये बहुत आम बात, लेकिन रात की तारीकी में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ पकड़ा जाए, हमारे लिए वो कोई आम बात नहीं। मेरी पाकीज़गी पर कीचड़ उछालने की मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। रोते हुए उसके लबों से यह जुमला निकला। खुद पर शदीद जब्त करते हुए गाजान उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा था कि कम से कम तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी, तो मेरा साथ दो तो हम सबकी गलतफहमी दूर कर सकते हैं, लेकिन न जाने तुम्हें क्या हुआ है। खजान की आंखों में शदीद नाराजगी उतर आई थी, मगर अनाबिया को उसकी कोई परवाह न थी। खजान ने एक दफा फिर उसकी जानिब पलट कर एक कदम बढ़ाना चाहा। शायद वो उससे कुछ समझाना चाहता था, लेकिन अनाबिया ने नफरत से मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। यह खजान के लिए आखिरी इशारा था और वो खामोशी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। खाली कमरे में अनाबिया तन्हा बैठी रह गई और उसे अपने वजूद से चिढ़ हो रही थी। नोच नोच कर उसने कानों में पहनी हुई ज्वेलरी उतार कर फेंक दी। जब कुछ ना बन पड़ा तो एक दफा फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं रोते रोते वो न जाने कब सो गई और उसे कुछ खबर ना हुई। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो कमरे में सन्नाटा था। आंखों पर पड़ने वाली रोशनी ने उसे बेचैन करके जगाया और आंखें मसलते हुए वो उठकर बैठ गई। कुछ देर तक तो उसके हवास ही बहाल ना हुए। फिर अचानक उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था, और उसका दिल एक दफा फिर बैठने लगा। उठ गई, कपड़े तब्दील नहीं किए थे रात को तुमने? यह गजान कमरे में ही नहीं आया? आवाज पर अनाबिया ने चौंक कर मुड़कर देखा। खिड़की के पास सारा खड़ी थी। उसी शान और तमतराक के साथ चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट सजाए वो सर से लेकर पैर तक अनाबिया का जायजा ले रही थी, जिसने अभी तक रूसी लिबास ही पहन रखा था। सर के बाल बिखरे हुए थे और काजल फैला हुआ था। आप ही मेरा यकीन करें, उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा आप सब समझ रहे हैं। अनाबिया ने एक दफा फिर सारा की मिन्नत समाजत शुरू कर दी, लेकिन उसने नखुवत से सर झटका। बंद करो अपनी बकवास, मैं यहाँ तुम्हारे ड्रामे देखने नहीं आई। मैं जो कुछ कह रही हूँ जरा ध्यान से सुनना। अपनी शक्ल देखो और गजान को देखो, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक है। उसने तुमसे शादी क्यों की है? वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था बस, और तुम खुद उसकी झोली में जा गिरी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा रात को वापस नहीं गए, उन्हें तायाजान ने रोक लिया था। तुम सारी जिंदगी गजान के साथ भला कैसे रहोगी? तुम्हारा और उसका तो कोई मैच ही नहीं। इतनी बेवकूफ हो तुम, और उसकी शानदार पर्सनैलिटी देखी। बेहतर यही है कि तुम सबके सामने जाकर कहो कि तुम्हें उससे तलाक चाहिए, फिर बाबा तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ज़ारा की बात पर अनाबिया सुन सी रह गई। उसने तो अभी तक अपनी निकाह वाली बात को ही कबूल नहीं किया था, और अब तलाक, उस लफ्ज ने तो जैसे उसे हिला कर रख दिया। ऐसे आंखें फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो? जरा खुद को देखो। पहली रात की दुल्हन को कोई छोड़ के कमरे से बाहर जाता है क्या? अगर गजान को तुम में जरा भी दिलचस्पी होती तो वो रात तुम्हारे साथ गुजारता। उसने तो तुम्हारे मुंह पर थूक दिया। उस रात भी उसने न जाने कैसे। अपनी बात अधूरी छोड़कर ज़ारा ने एक नफरत भरी निगाह अनाबिया पर डाली। अनाबिया ने अपना सर शर्म से झुका लिया। वाकई यह तो वो ठीक रही थी। गजान और उसके दरमियान ऐसा था क्या कि जिसकी निस्बत से वो उसकी बीवी बनकर यहाँ रही? निकाह को तो वो रोक नहीं सकी, लेकिन निकाह के बाद आने वाली जिंदगी तो उसके इख्तियार में थी।
वो ऐसे शख्स के साथ भला क्यों रहती जो उसे सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहता था। ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचो। शहर में तुम्हारी पूरी जिंदगी है, आगे स्टडी कर लेना, अपने जैसे किसी लड़के से शादी कर लेना। बाहर लाउंज में सब नाश्ते के लिए जमा हो रहे हैं, जाओ सबको तलाक की बात कह दो। वैसे भी यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। ताया जान और ताई जान तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत कर रहे हैं और उनके नजदीक तो तुम एक बदकिरदार लड़की हो। ज़ारा आराम से उसे कचोके लगाए जा रही थी और उसका वजूद तो सलसलों की जद में था। जल्दी बाहर आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाहर चली गई, जबकि अनाबिया का दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए, लेकिन रोते रहने से भी तो बात नहीं बन सकती थी। 2 दिन से वो मुसलसल रो रही थी। गहरी सांस लेते उसने खुद को कंपोज किया और वाकई ज़ारा ठीक कह रही थी। उसे गजान से तलाक ले लेनी चाहिए। जो कुछ हुआ था उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए। अगर वो हमेशा यहाँ रहेगी तो सब उसे एक बदकिरदार लड़की समझकर उस पर तरस खाते रहेंगे। हर गजान वो तो शायद उसे कभी कबूल ही नहीं करेगा कि वो जानबूझकर खुद उसके कमरे में आई थी। सादा सा सूट निकालकर वॉशरूम में घुसते हुए अनाबिया ने फैसला कर लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है। कपड़े तब्दील करके बगैर मेकअप के साथ कमरे से बाहर निकली। नाश्ते की मेज पर वाकई सारे जमा थे। वहां सफीना बेगम और तैमूर साहब भी बैठे हुए नजर आ रहे थे और ताई जान और ताया जान भी तो ही थे। उससे आते देखकर ज़ारा के लबों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। अपनी कुर्सी पर बैठा गाज़ान अजीब साकित अंदाज में बैठा था। उसका रंग लट्ठे की मान सफेद हो रहा था और कदमों की आवाज सुनने के बावजूद उसने सर न उठाया। ताई जान ने तो उसे देखते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अनाबिया को जिल्लत का एहसास हुआ। अरे अनाबिया बेटा आओ, तुम भी नाश्ता करो, ताया जान ने प्यार से कहा, लेकिन उसने नफी में सर हिला दिया। मैं आप लोगों से कोई बात कहने आई हूं, उसने सारी हिम्मतें जमा करके कहा। ज़ारा सीधी होकर बैठ गई थी। सभी ने चौंक उसकी जानिब देखा और सिर्फ अजान ही था जो अभी भी साकित बैठा था। अनाबिया को थोड़ा अजीब सा लगा। उस रात जो कुछ भी आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। मैं उस कमरे में गलतफहमी की बुनियाद पर चली गई थी, लेकिन आप लोगों ने हमें सच बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि गजान ने आपको सच बताया है या नहीं, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में हमारा निकाह हुआ, लगता तो यही कि गजान ने भी सिर्फ मौके का फायदा ही उठाया है। मगर मैं एक ऐसे अनचाहे रिश्ते में नहीं बंधी रह सकती जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं। उसने जैसे सबके सर पर बम फोड़ा था। उसकी बात पर सिर्फ ज़ारा ही थी जो खुलकर मुस्कुराई थी। और भी बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने अनाबिया को मजीद इशारा किया, लेकिन तैमूर साहब के चेहरे पर सुर्खी फैलना शुरू हो गई। ये क्या बदतमीजी है अनाबिया? सब बड़े बैठे हैं और तुम उन सबके सामने क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो? तैमूर साहब ने उसे डांटा, लेकिन अनाबिया ने उसी पल दिल कड़ा करके कह दिया, मुझे गजान से तलाक चाहिए। मैं इस जबरदस्ती के निकाह में नहीं रह सकती। मुझे शहर वापस जाना है। उसकी बात पर जैसे सबको सांप सूंघ गया। गजान ने जरा की जरा निगाह को उठाकर उसका जायजा लिया। ज़ारा ने हाथ में पकड़ा चम्मच वापस प्लेट में रख दिया था। बाबा जान, अनाबिया सही कह रही है। भला उसका और गजान का क्या मैच है? जब वो नहीं रहना चाहती गजान के साथ, हो सकता है कि उसे कोई और पसंद हो सकता है शहर में उसने किसी के साथ कोई वादा कर रखा हो। जबरदस्ती के रिश्तों में जुड़े रहने का उसका दिल नहीं तो क्या जरूरत है उसे जबरदस्ती यहाँ पर रखने की? गजान को चाहिए कि उसे तलाक दे दे। ज़ारा की बात पर सभी ने हैरानी से मड़कर उसे देखा था। लाउंज का माहौल अचानक से ही इंतहाई खराब हो गया। अनाबिया की आंखों में पानी भरने लगा और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 2 दिनों में ही इतनी बड़ी हो जाएगी कि निकाह के बाद तलाक जैसे मरहले से गुजरने पर भी बिल्कुल तैयार थी। तुम लोगों का जो दिल चाहता है कर लो। तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद कर सकते हो। तैमूर साहब ने एक तलखी भरी निगाह गजान पर डाली। देना चाहते हो मेरी बेटी को तलाक तो दे दो। हमने तुम दोनों की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, मगर तुम दोनों तो न जाने क्या चाहते हो। उन्होंने गुस्से से कहा और टेबल से उठकर चले गए। ज़ारा भी उठ खड़ी हुई थी और अचानक ही गजान उसकी सिमत पलटा। आप तलाक पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? आपको मेरी और अनाबिया की तलाक से क्या फायदा हो सकता है? उसकी बात में कुछ अजीब सा था। ज़ारा अचानक सटपटा गई और अनाबिया ने भी चौंक कर ज़ारा की जानिब देखा। ये बात तो उसने पहले सोची ही ना थी। ज़ारा क्यों उसकी तलाक करवाने के पीछे पड़ी थी? वो उन दोनों को खुश रहने का मशवरा भी तो दे सकती थी। ताया जान भी हैरत से ज़ारा को देख रहे थे, जो बुरी तरह से गड़बड़ाकर सबकी निगाहों को खुद पर जमे हुए देख रही थी। अरे मुझे पता है नाबिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी।
ऐसी ऐसी बदकिरदार लड़की को तुम अपनी जिंदगी में शामिल करके खुद को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने आप को देखो, तुम्हें उससे बेहतर लड़की मिल जाएगी, उसने कहा। तो अनाबिया ने बेयकीनी निगाहों से अपनी बहन को देखा। कमरे में तो वो कुछ और ही कह रही थी। नहीं, ये बात नहीं है। अब असल बात हम सबको बता क्यों नहीं देती? चले, आप नहीं बता सकती तो मैं कह देता हूँ। वो बात जो आप पिछले 2 दिनों से हमसे छुपा रही हैं, मगर मुझे हैरत है कि जो बात आपको हमें बता देनी चाहिए थी, आपने हमसे क्यों छुपाई? ग़ज़ान ने ज़ारा की तरफ मुड़ते हुए टूटे हुए लहजे में कहा। तो सभी चौंक कर उन दोनों को देखने लगे। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये इस तरह इशारों में क्यों बात कर रहे हो? सीधी तरह जवाब दो, हुआ क्या है? ताया जान अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। माहौल अचानक गंभीर हो गया था और अचानक ही ग़ज़ान की आंख से एक आंसू टपका, जैसे उसने सख्ती से अपने हाथ से साफ कर दिया था। उसने मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। उससे नंबर मिलाते देकर ज़ारा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने झपट कर अज़ान के हाथ से मोबाइल लेना चाहा, मगर उसने अपना हाथ दूर हटा लिया था। ये बात अब छुपी नहीं रह सकती, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले। उसने मोबाइल पर वीडियो कॉल मिलाकर सबके सामने कर दी। ये अमेरिका में मुकीम मेरा दोस्त है। 2 रोज पहले एक कार एक्सीडेंट में सादान भाई की मौत हो गई। उनकी मौत के फौरन बाद उनका मोबाइल सड़क से किसी ने उठा लिया। उनके रूममेट के पास सिर्फ ज़ारा भाभी का नंबर था, इसीलिए उन्होंने फोन करके सारा भाभी को इत्तला दी। मगर मैं हैरान हूं कि इस औरत पर जिसने उसे ना सिर्फ खामोश रहने का कहा, बल्कि बॉडी पाकिस्तान भेजने से भी मना कर दिया, वो पिछले 2 रोज से ज़ारा भाभी को फोन कर करके यही कह रहा है कि सादान भाई की बॉडी उनके वालिदैन के पास भेज देनी चाहिए। लेकिन इस औरत का इसरार है कि अगर उसने बॉडी यहाँ भेजी तो ये इस सादान भाई की बीवी की बजाय बेवा बन जाएगी और उनकी जायदाद में से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ग़ज़ान की बात थी या गोया कोई बॉम्ब? लाउंज में सब अफराद जैसे ढह से गए। एक कोहराम सा मच गया था। ताई जान तो फूट फूट कर रोने लगी और ज़ारा का रंग सफेद पड़ चुका था। ये सब झूठ है, ये झूठ कह रहा है। ज़ारा ने टूटे फूटे अल्फाज अदा किए तो ग़ज़ान ने अपने मोबाइल पर नजर आते दोस्त से कहकर सादान की बॉडी उन सबको दिखा दी थी। ताया जान की कमर टूट गई। जवान बेटे की मौत, और वो भी अचानक मौत ने उन्हें सदमे से निढाल कर दिया था। मगर ग़ज़ान के पास अभी और भी कुछ था जो वो उन सबको दिखाना चाहता था। उसने मोबाइल पर कॉल काट कर कुछ प्ले किया और सबके सामने मोबाइल रख दिया। कॉल पर ज़ारा की आवाज़ उफरने लगी। वो अंग्रेजी में कह रही थी कि बस कुछ अरसा और इंतजार कर लो। जिस दिन सादान के मरने की खबर मिली है उसी दिन तो ये सब मनहूस यहाँ हवेली में आ गए। मना भी किया था अम्मा को कि अब्बा और अनाबे को यहाँ मत आने देना, लेकिन अब वो मुंह उठाकर आ ही गए हैं, वो वापस नहीं भेज सकती। ऊपर से आते ही एक नया तमाशा शुरू हो गया है। अनाबिया का निकाह ग़ज़ान के साथ हो गया है, वरना मैं तो खुद को महफूज तस्वर कर रही थी। सादान के मरते ही मैं मामा से कह के अपना निकाह ग़ज़ान से करवा लेती। उस दौलत और हवेली की ठाट बाट से मैं हाथ नहीं धोना चाहती, लेकिन अब न जाने ये छिपकली कहाँ से मेरे मामले में कूद पड़ी है। पहले इसका पत्ता साफ करवा लूं ग़ज़ान से और इसको तलाक दिलवा दूं, उसके बाद तुम बॉडी पाकिस्तान भेज देना। सादान की दौलत और जायदाद न सही, ग़ज़ान की बीवी बनने के बाद तो मुझे जायदाद में हिस्सा मिलेगा ना। ज़ारा सादान के रूममेट से कह रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी बता रही थी कि वो दोनों आपस में पहले भी बातचीत करते रहते थे। जवाबन सादान का रूममेट ज़ारा से पूछ रहा था कि आखिर ग़ज़ान अनाबे को तलाक क्यों देगा, जिस पर उसने हंसते हुए कहा कि अरे क्यों नहीं देगा तलाक, उन दोनों का निकाह भी तो बस गलत फहमी की वजह से हुआ है। मुझे पता है कि अनाबे गलती से उसके कमरे में चली गई थी, मैंने खुद उसे देखा था और जानबूझकर मैंने उसे ये नहीं बताया कि ये उसका नहीं बल्कि ग़ज़ान का कमरा है। मैं तो चाहती थी कि उसकी थोड़ी सी बेइज्जती हो। मुझे क्या पता था कि दोनों का निकाह ही हो जाएगा, लेकिन खैर जैसे निकाह हुआ है वैसे ही मैं तलाक भी करवा दूंगी। वो सारी निगाहें जो अब तक अनाबिया की तरफ उठी थी, अब उन सब का रुख ज़ारा की जाने मुड़ चुका था। सबकी निगाहों में नफरत थी और गुस्सा था। ग़ज़ान ने गहरी सांसें भरते हुए मोबाइल वापस उठाया। उस रात अनाबिया गलती से मेरे बेडरूम पर सो गई थी और मैं भी बगैर देखे बेड की दूसरी जानिब आकर सो गया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर हमेशा शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन मैं अनाबिया को पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ग़ज़ान ने मुड़कर अनाबिया को देखा। जो कुछ वो सुन चुकी थी उससे ज़ारा की असलियत का अच्छे से पता चल चुका था। उसकी आंखों से 2 आंसू टपके जिसे उसने सख्ती से रगड़ कर साफ कर लिया। दुख की उस घड़ी में वो अपने शौहर और उसके घर वालों के साथ थी। वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी। अब वो हमेशा ग़ज़ान के साथ रहना चाहती थी और वहां से वापस तो अब सिर्फ ज़ारा ने जाना था, जो चीखते चिल्लाते हुए
بار بار حویلی کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں آنے والا تھا۔ تایا جان اور تائی جان غم سے نڈھال تھے، اور خود غازان بھی جو اب تک ضبط کر رہا تھا۔ اچانک یہ نڈھال انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اور انابیہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔